Hello class 10th students. So today we are just going for a quick revision of chapter electricity. I will suggest you to go through this soft copy of NCERT book. In the first paragraph you can see what is written about electricity. It has an important place in modern society. Now how you can write about electricity? It is a controllable. So first word is controllable. It means you can control electricity, like you can switch on and switch off, and it is a convenient form of energy for a variety of uses. We use electricity in home, schools, hospitals, industries, and so on. So now there is first question: what constitute electricity? Electricity bana kisse hai? So answer for this question will be electrons. Okay, like flow of electrons basically makes electricity. How does it flow in an electric circuit? So for the flow of electricity, we must have PD, potential difference between 2 points. If there is potential difference between, if I'm saying like this is point A, this is point B. For example, A का potential difference हम लोग मान लेते हैं, A का potential आप लोग 10 वोल्ट मान लीजिए, B का potential हम लोग मान लेते हैं 5 वोल्ट. Now electric current or electricity will flow from high potential to low potential. So you can say this is high potential and this is low potential. What are the factors that control or regulate the current through an electric circuit? There are so many factors. You can say the flow of electric current depends on like how much charge is being transferred in how much time, because the formula for electric current is Q over T. I represent electric current, Q stands for electric charge, T stands for time. In this chapter, we shall attempt to answer these questions. This is already done. We shall also discuss the heating effect of electric current. This is important and its application. So in the first paragraph, there is no that much important content. So let's go ahead. This is kind of a quick reason. अगर आपका पेपर आसपास है तो आई विल सजेस्ट आप एक बार जरूर वीडियो पूरा देखिएगा. Okay, now electric current and electric circuit. We are familiar with air current. हमें पता है एयर करंट क्या होता है. Air current is basically the flow of air. Similarly, we are having more words. Water current, the flow of water. Water, flowing water constitute water current in the rivers. आपने देखा होगा अगर रिवर में पानी फ्लो कर रहा है तो हम उसको बोल सकते हैं water current. Similarly, if the electric charge flows through a conductor, for example through a metallic wire, we say that there is electric current in the conductor. Okay, so this point is important. You can highlight this one.
if the electric charge flows through a conductor may be like there is a metallic wire. We say there is electric current in the conductor. अब example समझा रहे हैं. In a torch, we know that cells or a battery, when placed in proper order means like you have to connect positive terminal to positive terminal, negative terminal with negative terminal. Provide the flow of charges or an electric current through the torch bulb to glow. हमें पता है आप क्या करते हैं, टॉर्च का स्विच ऑन करते हैं. जैसे ही आप टॉर्च का स्विच ऑन करेंगे तो बल्ब ग्लो करता है एंड यू कैन सी द थिंग्स अराउंड यू व्हेन इट इज डार्क. तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं जिनका मतलब हमें पता होना चाहिए. सबसे पहले दिस वर्ड इलेक्ट्रिक चार्ज. अगर हमारे पास कोई भी बॉडी है, मटेरियल है, कोई बॉडी, और यू कैन से इफ there is a material and if this material is having, you can say, excess of electrons, or sometimes this material may have deficiency of electrons. Then I can say that object is charged. Okay, so electric charge is defined as a property of a material by which that object is having excess of electrons or deficiency of electrons. Now we know electric charge is of two types. If we talk about types, two types of charge is there: positive charge and second one is negative charge. पॉजिटिव चार्ज कब होता है बॉडी पे? व्हेन देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन. लाइक आपने किसी ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन निकाल लिए तो नेगेटिव चार्ज वहां से चला गया है, तो उस बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. एंड सेकंड थिंग यू कैन से सम टाइम ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी नेगेटिवली चार्ज्ड. कब? जब कोई ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती है. ओके, और अगर किसी स्पीसीज पे पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसको हम बोलते हैं कैटायंस. केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, ये दो वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, cations with positive charge, anions with negative charge. So how can you remember? Like you can make some clues for it. Like दिल्ली में एक प्लेस है, कोनाट प्लेस, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं सीपी. C4 cation, P4 positive charge. Okay, so I generally make this kind of full form so that मुझे याद रहे. आप भी ट्राई कर सकते हैं. एक आप याद कर लीजिए, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा. इंग्लिश में भी हम लोग एक आर्टिकल यूज करते हैं, एन. A is for anion, N is for negative charge. So this is how you can make your own acronyms. Okay. So this paragraph is quite clear to you. Next, we can talk about
जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, अगर आप लोग टॉर्च का स्विच ऑन करते हैं तब हमें लाइट मिलती है, so that we can see the things in dark. Now this, what is this switch? Okay, now you can go line by line. We have also seen that torch gives light only when it is switch on. So next we need to know about this switch. What does a switch do? So first of all, switch होता क्या है? This is the simple definition. You just mark this. You can make notes. A switch makes a conducting link between the cell and the bulb. Here you can write, a switch can make a conducting link between the cell. What is a cell? This is a device used to create potential difference. Used to create potential difference. And the bulb, here you can use the generalized word electrical appliance. A switch makes a conducting link between the cell or battery, because battery is a combination of cells. When we need a higher potential difference, we use battery. When we need a small potential difference, we use a cell and a electrical appliance. Now next, one more definition. It is also important. So let me highlight this one. This one. This one is my highlighter. So if someone says what is electric circuit, so this simple statement is the answer. A continuous and closed path of an electric current. This is known as a electric circuit. आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखना है. जितना सिंपल आप लिखेंगे उतना ही इजीली आपके टीचर आपका आंसर समझ पाएंगे. Now if the circuit is broken anywhere or the switch of the torch is turned off, अगर सर्किट कहीं से टूट जाए मतलब लाइक आपने वायर के सेक्शंस कर दिए बेसिकली. लाइक आपके पास नाइफ है, नाइफ से आपने वायर को कट कर दिया है. दैट सिचुएशन इज इक्वलेंट टू, लाइक आपने चीजों को, जो स्विच है हमारा, उसको टर्न ऑफ कर दिया है. तो क्या होगा? करंट स्टॉप्स फ्लोइंग, करंट रुक जाएगा. तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा, क्योंकि बल्ब तो सिर्फ तब तक ग्लो करेगा जब तक बल्ब को इलेक्ट्रिक करंट मिल रहा होगा, लाइक देयर इज फ्लो ऑफ चार्ज. नेक्स्ट, होपफुली यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा. अगर कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. नेक्स्ट, हाउ डू वी एक्सप्रेस इलेक्ट्रिक करंट? अब इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन आ गई है. अगेन आई एम जस्ट मेकिंग यूजिंग हाइलाइटर सो दैट आपको डेफिनेशन क्लियर हो जाए. सिंपल डेफिनेशन लिख लीजिएगा. द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज flowing through a particular area in unit time. This is your definition for electric current. ये डेफिनेशन लिख सकते हैं. अगर ये आपको याद नहीं हो रही है, थोड़ी कॉम्प्लेक्स लग रही है, वैसे तो सिंपल ही है, एनसीईआरटी में काफी सिंपल चीजें लिखी हुई हैं. नहीं तो फिर आप ये लिख लीजिएगा, ये और भी आसान है. द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट. द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस. अब यहाँ पे कुछ बातें बतानी पड़ेंगी आपको इलेक्ट्रिक करंट के बारे में. पहला, डेफिनेशन क्लियर हो गई. डेफिनेशन क्लियर है, उसके बाद कुछ फॉर्मूला आना चाहिए. तो मैथमेटिकली यू कैन राइट करंट सिंबल इज आई, दैट इज इक्वल टू कितना अमाउंट ऑफ चार्ज और कितने टाइम में फ्लो कर रहा है. जब भी आप कोई फॉर्मूला लिखते हैं तो वहां पे बताइएगा आई क्या है. आई रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रिक करंट को,
क्यू रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रिक चार्ज को, टी कितना टाइम लगा है चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह जाने में। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? तो एसआई यूनिट इज एम्पियर। ओके, सिंपली वी राइट कैपिटल ए, लाइक वी, आपने देखा भी होगा बहुत सारे डिवाइसेस के पीछे लिखा होगा 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, 15 एम्पियर। ठीक है, symbol for electric current in this book we are using I. Now next, what is the nature of this quantity? अगर आपसे कोई पूछे what is the nature of electric current, so you will say this is a scalar quantity. Scalar quantity क्या होती है? वो फिजिकल क्वांटिटीज जिनके पास सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है। डायरेक्शन नहीं होती, सिर्फ मैग्नीट्यूड, मतलब जस्ट वैल्यूज होती हैं। लाइक we can say current flowing through the wire is 5 ampere. So this 5 is known as magnitude, numerical value, and A stands for the unit, ampere. Okay, now we can read ahead. This is how I make my notes. So आप भी ऐसे फॉलो कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगा हो तरीका। In circuits using metallic wires, electrons constitute the flow of charges. तो क्वेश्चन आया था ना ऊपर, what constitute electricity? So this is the answer. However, electrons were not known at the time when the phenomenon of electricity was first observed. So electric current was considered to be flow of positive charges, and the direction of flow of positive charges was taken to be direction of electric current. Conventionally, and in an electric circuit, the direction of electric current is taken as opposite to the direction of flow of electron, which are negatively charged particles. So यहाँ पे वो डायरेक्शन के बारे में कुछ बताना चाहते हैं। सो सिंपली समझते हैं। एक वायर बनाते हैं, मान लेते हैं ये एक वायर है, यहाँ पे ए पॉइंट है, यहाँ पे बी पॉइंट है। अगर ए से बी की तरफ जा रहा है पॉजिटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन भी ए से बी ही होने वाली है। ठीक है, लेकिन अगर मैं सिचुएशन चेंज कर देता हूं, फॉर एग्जांपल आई एम सेइंग कि नहीं, ए से बी जा रहा है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अगर ए से बी नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो इन द सेकंड केस व्हेन आई एम फॉलोइंग द पाथ shown in green color, the current will flow from B to A, because करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन के तो साथ होती है, लेकिन नेगेटिव चार्ज के ऑपोजिट होती है। सिर्फ ये बात आपको याद रखनी है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन याद रखें या नेगेटिव चार्ज की। तो आपको सिर्फ एक ही डायरेक्शन याद रखनी है। क्या? अगर चार्ज पॉजिटिव है तो जिस साइड पॉजिटिव चार्ज जा रहा है वही क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ करंट होने वाली है। नेगेटिव चार्ज को पॉजिटिव होनी है। ठीक है, कि ये वही लिखा हुआ है, इफ a net charge q flows across any cross section of a conductor in time t, करंट का फॉर्मूला आ जाएगा q by t। ऐसा यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज की होती है कोलम। ठीक है, ये याद रखना है। इलेक्ट्रिक चार्ज की ऐसा यूनिट होती है कोलम, सी से रिप्रेजेंट करते हैं। टाइम के ऐसा यूनिट होते हैं सेकंड, विच इज इक्वल टू
वन कॉलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, तो आप ये याद कर लीजिएगा, 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एग्जैक्ट वैल्यू 6.25 × 10⁻18 आता है, बट ये आप याद कर सकते हैं। हमें पता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है कितना, 1.6 × 10⁻−19 कूलम। इलेक्ट्रिक करंट की SI यूनिट हमें पता चल गया, एम्पियर होती है, साइंटिस्ट थे उन्हीं के नाम पे रखी हुई है। नाउ दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट, कई बार पूछा जाएगा आपसे पेपर में, डिफाइन 1 एम्पियर। तो पहले आप, जैसे ही आपसे ये पूछा जाए डिफाइन 1 एम्पियर, तो मैं तो कहता हूँ सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले आपको ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिख देना चाहिए, ये वाला, 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम डिवाइडेड बाई 1 सेकेंड। इसका मतलब ये है, अगर मेरे पास कोई कंडक्टर है, उस कंडक्टर में 1 कूलम का चार्ज फ्लो कर रहा है और उसको टाइम लग रहा है 1 सेकेंड। सो दिस इज द सिंपल डेफिनेशन, ये 1 एम्पियर is constituted by the flow of 1 coulomb of charge per second। कई बार छोटे यूनिट भी यूज करते हैं, मिली एम्पियर आ जाएगा तो 10⁻³ माइक्रो एम्पियर आ जाएगा 10⁻�6। ठीक है, एक डिवाइस होता है जो करंट मेजर करता है, उसका नाम है बच्चे एमीटर। ठीक है, अगर आपको कभी मेजर करना हो किसी भी सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो आपको कौन सा डिवाइस यूज करना है, एमीटर। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन series in a circuit through which current you have to measure। फिगर में बना रखा है, it shows a schematic diagram of a typical electrical circuit। इसके अंदर क्या क्या लगा हुआ है, ध्यान से देखिएगा, एक सेल लगा हुआ है, ये रहा। सेल को बहुत ध्यान से बनाना है, एक टर्मिनल बड़ा है पॉजिटिव चार्ज वाला, और एक टर्मिनल छोटा है नेगेटिव चार्ज वाला। करंट फ्लो करेगा पॉजिटिव से, यहाँ पे बल्ब लगा रखा है, चार्ज फ्लो कर रहा है, यहाँ पे एमीटर कनेक्टेड है, यहाँ पे की है प्लग की, स्विच ऑन होगा तो इसके बीच में डॉट लगा रखा है, स्विच ऑफ होगा तो ये डॉट नहीं मिलेगा आपको। दिस इज अ सिंपल schematic diagram of an electric circuit comprising cell, electric bulb, ammeter and plug की। ठीक है, ये लिखा हुआ, इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इन सर्किट फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल थ्रू बल्ब एंड एमीटर। ठीक है, इसको मैंने याद करने के लिए क्या कर रखा है, एक एक्रोनिम बना रखा है, लेट मी शेयर विद यू, बट आई, आप लोग अगर क्रिकेट मैच देखते हैं तो ऑस्ट्रेलिया का सिंबल होता है बच्चे AUS। ए से हो गया हमारा एमीटर, यू का मतलब होता है यूनिटी, जोड़ना, और एस का मतलब सीरीज। सो एमीटर यूनाइटेड मतलब कनेक्टेड इन सीरीज, ऐसे आप याद कर सकते हैं। तो आज ये इंट्रोडक्शन क्लास है, ऐसे अगर आप एनसीईआरटी को पढ़ेंगे तो आई एम डैम श्योर आपका स्कोर बहुत अच्छा आएगा। ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट, ऐसे ही नोट्स बनाने हैं।